Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 9 right now, final account of proprietary concern, and we are going to start with question number 3, page number 320 from your textbook. Let us start with reading from the following trial balance of Sanjeev and Sons. It is the name of the proprietorship, Sanjeev and Sons. Prepare trading and profit and loss account for the year ending on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Which date? 31st March 2019. They have segregated this thing in debit amount and credit amount, you can see. So first of all, start marking along with me. So first thing is opening stock. Where we put opening stock? Trading account, debit side, right? Trading account, debit side. Purchase and sales. So this amount is purchases. So trading account, debit side, and this credit amount is sales, hence it will go trading account credit side. ठीक है. Carriage outward, underline outward. Outward होता है, that means what? We had paid carriage on sales, है ना, ऐसा होता है. तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. तो राइट ओवर हियर प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपली राइट P&L. Plant and machinery, asset for us. Debtor and creditor. Debit amount debtor, that will go to asset. Credit amount creditor, that will go to liability. ठीक है. Returns, as we discussed earlier, returns means डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. रिपीट विथ मी, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. दैट मीन्स व्हाट? दिस इज सेल्स रिटर्न. So less from sales, and this one is purchase return. So less from purchases, right? Moving ahead, building. Building simply we'll put it in asset. Motor van, again asset. Printing and stationery, expense है, indirect. So profit and loss account, wages, direct expense. Trading account, debit side. Reserve for bad debts, this will be treated as ओल्ड रिजर्व. ठीक है ना. और ओल्ड रिजर्व है तो हमें क्या करना चाहिए? लेस फ्रॉम ओल्ड बैड डेट्स. ओल्ड बैड डेट्स में से लेस करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, राइट. कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज कमीशन रिसीव्ड. क्रेडिट साइड में दिया, दैट मीन्स रिसीव्ड, बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. अगर डेबिट में दिया होता तो क्या होता? कमीशन पेड. hence it will go to profit and loss account credit side, right. Office expenses, profit and loss account debit side. Carriage, so now it is what? Carriage inward or outward? ऊपर हमको क्या दे दिया था? ऊपर हमें दे दिया था carriage outward, है ना, this one. तो automatically this carriage will be what? Inward. Even though if nothing is given, we have to consider it as इनवर्ड इन नेचर. ठीक है. कभी आपको सिर्फ कैरियज दिया है, जैसे अभी दिया है, ठीक है ना, तो इसको हमेशा जनरल अजम्पशन हम क्या करेंगे? जनरल अजम्पशन होगा कैरियज इनवर्ड का. ठीक है. नेक्स्ट, फर्नीचर. फर्नीचर विल गो टू एसेट. अच्छा, कैरियज इनवर्ड जाएगा कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में. ठीक है. प्रीमाइसिस, एसेट. अच्छा, प्रीमाइसिस क्या होता है? तो जो हमारा लैंड एरिया है और जिसपे हम लोग ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है ना, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो भी एरिया रहता है उसे प्रीमाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये लैंड एरिया है और यहाँ बीच में आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया एज बिल्डिंग. ठीक है ना.
तो ये जो भी एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग प्रीमाइसेस बोलो, लॉन बोलो, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो एन एसेट। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होता है, जो फैक्ट्री के अंदर हम इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, जो भी टूल्स यूज करते हैं मशीनरीज के लिए, दैट इज ऑल्सो एन एसेट फॉर अस। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से आपको लेस करना है, hence it will go to liability side, balance sheet liability side. Now bank overdraft is what, liability for us. बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है ना, तो वो हमें पे करना होगा। इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल लोन, शॉर्ट टर्म लोन फॉर 3 months, तो इसे हम लाइबिलिटी साइड में पुट करेंगे। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट। डिविडेंड, अब डिविडेंड पेड है या रिसीव्ड, देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में, दैट मीन्स इट इज डिविडेंड रिसीव्ड, और रिसीव्ड होगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड। कैपिटल लाइबिलिटी, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट थिंग इज बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल। आई टोल्ड यू बिल्स रिसीवेबल इज एज इक्विवेलेंट टू डेटर्स, है ना, तो इसको हम डेटर जैसा ही ट्रीट करेंगे। हम बोल सकते हैं इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटर, क्यों, क्योंकि इसका डेट फिक्स हो चुका है, इसने हमको एक प्रॉमिस करके दे दिया है रिटर्न में, ठीक है। तो ये जो डेबिट साइड में है ये कहाँ जाएगा, एसेट, सेपरेटली लिखेंगे। और ये जो क्रेडिट में है ये बिल्स पेबल है, तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी, ठीक है। नाउ बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स होगा, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ओल्ड आइटम, ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, फॉर्मेट में ले लेंगे। फॉर्मेट याद है आप सभी लोगों को, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लीव अ लाइन, लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, वेदर इट इज इन परसेंटेज फॉर्म या ब्रैकेट में ऐसा कोई डेट दिया हो या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया हो, तो इसको हम कंसीडर करेंगे हिडन एडजस्टमेंट। क्या कंसीडर करेंगे, हिडन एडजस्टमेंट। और मुझे बताइए एडजस्टमेंट के हम कितने इफेक्ट देते हैं, यस, ऑल एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट्स, ठीक है ना। सो राइट ओवर देयर हिडन एडजस्टमेंट। तो जब भी ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको सेपरेटली दिया हो, वेदर इट इज इन द परसेंटेज फॉर्म और इट इज इन सम डेटा फॉर्म, तो इसको हम हिडन एडजस्टमेंट कंसीडर करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट पे हमने पहले ही यहाँ पर मार्किंग कर दिया, क्या कर दिया, मार्किंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये जो 6,000 रुपीज पे किया है ना, ये बता रहे हैं ये 3 years का है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years. We will check in adjustment whether they have given any other information regarding advertisement. नीचे advertisement के बारे में कुछ लिखा है क्या, no, nothing is mentioned. That means what, ये जो 6,000 है ये 3 years का इंफॉर्मेशन है, तो हमें कितने years का इंफॉर्मेशन चाहिए, 1 year का, ठीक है। तो 3 years का 6,000, तो 1 year का कितना, इतने पे इतना, तो इतने पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 6,000 divided by 3. So what will be the answer, 2,000. So 2,000 क्या है, करंट ईयर का, एंड रिमेनिंग 4,000 इज फॉर प्रीपेड, remaining 4,000 is for prepaid. So let us learn once again एडवर्टीजमेंट के एडजस्टमेंट के बारे में बात करें। विच टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इट इज, इट इज हिडन एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट। तो जब कभी ट्रायल बैलेंस में आपको ऐसा सेपरेट इंफॉर्मेशन दिया हो ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसे कंसीडर करेंगे
हिडन एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट है तो इसका कितना इफेक्ट देना पड़ेगा, 2 इफेक्ट। अब ये जो इंफॉर्मेशन है क्या बताया, एडवर्टीजमेंट इज डन फॉर 3 इयर्स, तो 6000 वी हैड पेड फॉर 3 इयर्स। तो इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा करंट ईयर का और दूसरा होगा प्रीपेड इन नेचर। क्यों प्रीपेड, क्योंकि करंट ईयर तो 1 ईयर का ही होगा ना, तो यहाँ पर 2000 रुपीज जो है वो करंट ईयर में आ जाएगा, दैट इज आउटर कॉलम। और प्रीपेड जो होगा उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड कितना है, 4000। तो कैसे ये फिगर आया 2000 एंड 4000, हमने 6000 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या मिलेगा, 2000 फॉर 1 ईयर, है ना, 1 ईयर का 2000, तो यहाँ पर टोटल कितना लिखा है, 3 इयर्स, तो ये जो प्रीपेड है ये 2 इयर्स का है, राइट। तो इसका दूसरा इफेक्ट, ये प्रीपेड जो है इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। ओके, तो इसका वर्किंग हम सेपरेटली करेंगे बाद में। मूविंग टुवर्ड्स एडजस्टमेंट, एक एक करके अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, रिमेंबर फॉर एवरी एडजस्टमेंट वी विल गिव मिनिमम 2 इफेक्ट। First one is closing stock. Closing stock on 31st March 2019 was at cost 60,000 and market price 70,000. So we will take whichever is lower, and lower amount is 60,000. तो 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा, इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, इफेक्ट नंबर 2 बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2 अमाउंट यहाँ पर है, एक है वेजेस, दूसरा है सैलरी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सैलरी आपको दिखाई देता है, उसको एक टिक मार्क कर दो क्योंकि उस पे एडजस्टमेंट है। और फिर वी विल सर्च फॉर वेजेस एज वेल, वेजेस पे भी एक क्या करेंगे, टिक मार्क, एक मार्किंग कर देंगे सो दैट वी कैन नो किसको इनर कॉलम में हमें लिखना है। तो ये आउटस्टैंडिंग है तो इसको क्या करेंगे, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस। वेजेस को वेजेस में से लेस कर देंगे और सैलरी को सैलरी में से, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, आउटस्टैंडिंग है तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है, इसी साल दिखाना है, हेंस वी हैव टू ऐड दिस। ठीक है ना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, ऐड होता है। इफेक्ट नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2 क्या होगा, क्योंकि ये पे करना बाकी है, हेंस इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, सो नंबर 1 ऐड टू रिलेटेड एक्सपेंस, नंबर 2 लायबिलिटी साइड। थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन मोटर वैन एंड फर्नीचर। तो मोटर वैन कहां पर है, सर्च फॉर इट, हियर इट इज। सो मोटर वैन पे एक टिक मार्क कर देंगे, टेक फर्नीचर एज वेल। ओके, तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है उसका एक इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट, रिलेटेड एसेट से लेस करेंगे। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सेपरेटली शो करेंगे। नंबर 4, राइट ऑफ 2000 बेड डेट्स एंड क्रिएट आरडीडी एट द रेट 5%। दोनों में से पहले क्या ले लेंगे, पहले बेड डेट्स लिया जाएगा क्योंकि वो क्या है, कंफर्म है ना। तो डेटर पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, सर्च फॉर डेटर। हमें डेटर क्रेडिटर स्टार्टिंग में साथ में दिया था, तो उसमें से जो डेटर है उस पे 2 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो ये जो 44,000 का अमाउंट है इस पे हमको 2 एडजस्टमेंट करना है।
तो उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1, लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मेट जो है उसमें आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% पर एनम, किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की। ठीक है, प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या होगा? फर्स्ट एडजस्टमेंट, ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड होता है, पे करना बाकी है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। दूसरा, ये बिजनेस को पे करना है, ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैपिटल सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैपिटल है, और कैपिटल पे 10%, दैट मीन्स 1,40,000 पे 10% जब आप निकालेंगे तो आपको 14,000 का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। गेटिंग इट एवरीवन? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम नेम लिखेंगे कंपनी का इन द बुक्स ऑफ। किसका बुक है? तो बुक है संजीव एंड सन्स का। सो राइट इन द हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन्स। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, यही मेंशन करना है। इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यू विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको लेजर जैसे आप बनाते हो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग कीजिए। आप डेबिट और क्रेडिट लिखना ना भूलें, अदरवाइज इसका भी मार्क्स डिडक्ट होता है। देन यू विल मेक बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पर आपको फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना है, आपको लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2019। अब कुछ फॉर्मेट जो फिक्स हैं, हमें पता है वो आने वाले ही हैं, तो हम उसे पहले से लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस, परचेस रिटर्न डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में वी कैन राइट बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स कुछ क्या है, फिक्स है ऑलरेडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मेट है हमारा बैड डेट से रिलेटेड, ये फिक्स है। टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट वहां पर फिक्स रखना है। इसके अलावा बैलेंस शीट में कैपिटल माइनस ड्राइंग, लीव अ लाइन प्लस नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे, तो उसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। और यहाँ असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा ही। ठीक है, तो चलो एक एक करके अब हम ट्रायल बैलेंस को आइटम को शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइटम देखते हैं, दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 22,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे क्विकली, हमने पहले से लिख रखा है। सो 22,000। नेक्स्ट आइटम परचेसेस कितना दिया है? 1,78,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है, 1,78,000। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स का वैल्यू है 4,60,000 का, 4,60,000। ठीक है। नेक्स्ट कैरियज आउटवर्ड, कैरियज आउटवर्ड 4,800, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। तो पीएनएल में आप आ जाइए, यहाँ पर यू विल राइट टू कैरियज आउटवर्ड 4,800, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर लीव वन लाइन क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रॉस लॉस आएगा उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसके लिए स्पेस रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 50,000। कहाँ जाएगा? असेट में। क्या उस पर एडजस्टमेंट है? नहीं, नो एडजस्टमेंट। तो प्लांट
and machinery. How much? 50,000. सॉरी, इनर कॉलम नहीं आएगा, आउटर कॉलम में आएगा, बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट. डेटर एंड क्रेडिटर. तो जो डेबिट साइड में दिया है वो डेटर है, उस पर डबल एडजस्टमेंट है 44,000. तो आइए लिखते हैं डेटर, डेटर्स, इनर कॉलम आ जाएगा 44,000. फर्स्ट ऑफ ऑल लीव वन लाइन एंड देन लीव टू लाइंस, टोटल 3 लाइंस. ठीक है, यहां पर क्या मेंशन करेंगे? लेस न्यू बेड डेट्स, देन लेस न्यू आरडीडी. ठीक है, तो ये हमने पहले से लाइन लीव कर दिया वहां पर एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट रीड किया हुआ था. दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी नो कि कितने लाइंस को लीव करना है. मूविंग अहेड, आफ्टर डेटर क्रेडिटर्स. क्रेडिटर कितना है? 76,000. तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स 76,000, नो एडजस्टमेंट. नेक्स्ट रिटर्न्स. रिटर्न्स देखिए, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में है ना, तो ये 2,000 हम सेल से लेस करेंगे. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न इनटू ब्रैकेट 2,000. आउटर कॉलम में कितना आएगा? 4,58,000. एंड सिमिलरली परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कितना है? 4,000 इनटू ब्रैकेट. आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,74,000. सो डन विथ रिटर्न्स. नेक्स्ट बिल्डिंग. क्या बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो. 58,000 आउटर कॉलम. तो बिल्डिंग लिखेंगे, अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा 58,000. नेक्स्ट मोटर वैन. देखिए टिक मार्क करके रखा है, दैट मीन्स वी हैव एडजस्टमेंट ओवर हियर 40,000. ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे मोटर वैन, इनर कॉलम 40,000, लीव वन लाइन फॉर द डेप्रिसिएशन पार्ट. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर मोटर वैन वी हैव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हियर यू विल राइट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट 4,000. सॉरी 3,000. अमाउंट इज 3,000. नेक्स्ट वेजेस. वेजेस कितना दिया है? 28,000. क्या कोई एडजस्टमेंट है? यस. तो इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस. इनर कॉलम में वेजेस का वैल्यू देखिए कितना है? 28,000. ठीक है, तो 28,000 इनर कॉलम में मेंशन करते हैं. हमें पता है इस पे क्या है? एडजस्टमेंट. क्या करना है? लेस करना है. आउटस्टैंडिंग.
ओके, सो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव ओल्ड रिजर्व फॉर बेड डेट्स. कितना दिया देखिए 3200. पहले से हमने इसका फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड प्रिपेयर करके रखा है, और यहाँ पर लास्ट में आता है ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. सो इनर कॉलम में हम मेंशन करेंगे इनटू ब्रैकेट 3200. ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट कमीशन. कमीशन रिसीव्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 2400, नो एडजस्टमेंट. तो यहाँ पर लीव वन लाइन एंड देन राइट टू कमीशन 2400. Next, office expenses 5400. So we will write over here to office expenses, outer column 5400, no adjustment. Carriage, carriage if nothing is given we will consider inward. तो trading account में जाएगा 9000, no adjustment. To carriage. इनवर्ड लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. अमाउंट कितना आ जाएगा 9000. ओके, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में कमीशन को मुझे बाय लिखना है, तो आई विल चेंज दैट बाय कमीशन. ठीक है, यहाँ पर बाय कमीशन आ जाएगा. नेक्स्ट कैरेज हमने देखा 9000. नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया है 20000. तो फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, आप असेट साइड में आ जाएंगे. यू विल राइट ओवर हियर फर्नीचर. इनर कॉलम 20000, लीव वन लाइन फॉर डेप्रिशिएशन. ठीक है, यहाँ पर आपको बाद में डेप्रिशिएशन लिखना पड़ेगा एट द रेट. तो एडजस्टमेंट के लिए हम पहले से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. तो दो डेप्रिशिएशन यहाँ पर, एक मोटर वैन है, दूसरा फर्नीचर पे है. आफ्टर फर्नीचर वी हैव प्रीमाइसेस. अमाउंट है 81000, नो एडजस्टमेंट. सो वी विल राइट ऑन द एसेट साइड प्रीमाइसेस 81000, आउटर कॉलम. लूज टूल्स कितना दिया है 20400. सो वी विल राइट लूज टूल्स 20400. नेक्स्ट ड्राइंग्स कितना है, कैपिटल से लेस करेंगे 24700. तो हम लोग ने पहले से इसके लिए स्पेस क्रिएट कर रखा है 24700. इनर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर इनटू ब्रैकेट नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 22000, आउटर कॉलम लाइबिलिटी. सॉरी 22000 है. आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव कैश इन हैंड. हाउ मच कैश इन हैंड वी हैव 71000. तो असेट में मेंशन करेंगे कैश इन हैंड
outer column 71,000. Next, dividend received 3,300. Profit and loss account credit side by dividend received 3,300. सिर्फ डिविडेंड लिखा तो भी चलेगा. नेक्स्ट, कैपिटल दिया है 1,40,000. वी आर रेडी, सो वी विल राइट ओवर हियर 1,40,000. ठीक है ना. और एक चीज आपको याद आती है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी था, राइट है. कैपिटल पे क्या था? इंटरेस्ट. तो उसके लिए भी हमको यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट है. तो इंटरेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर एक एडजस्टमेंट के लिए स्पेस क्रिएट कर दिया, जो हम बाद में यूज कर पाएंगे. नेक्स्ट, आफ्टर कैपिटल वी हैव सैलरीज. हाउ मच सैलरी? 44,000. क्या एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज, inner column 44,000, leave a line and you will write add outstanding. Next, bills receivable and payable 5,600. तो asset side में आ जाएगा. bills receivable 5,600 और liability side में आ जाएगा bills payable. outer column क्या वैल्यू है? 8,400. नेक्स्ट, बेड डेट्स. कितना बेड डेट्स है? 2,400. ओल्ड बेड डेट्स ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है 2,400. तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे इनर कॉलम में 2,400. ओके. नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट पे हिडन एडजस्टमेंट है 6,000 है, तो हम लिख रहे हैं ओवर हियर टू एडवर्टीजमेंट. हिडन एडजस्टमेंट है तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 6,000. और याद आता है हमने कसम खाई है कि कोई भी हिडन एडजस्टमेंट होगा तो बिना दो इफेक्ट दिए आगे नहीं बढ़ेंगे. तो पहले हमको यहाँ पर क्या करना है? लेस प्रीपेड. ठीक है, इसमें से हमको प्रीपेड को लेस करना है. तो प्रीपेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट का अमाउंट क्या है? 6,000. This is for 3 years. We want for 1 year. So 2 years जो एक्स्ट्रा पे किया है ये क्या हो जाएगा? प्रीपेड. ठीक है, तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6,000 डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आएगा? 2,000. तो 2,000 करंट ईयर का है और 4,000 प्रीपेड है. तो ये 4,000 का दो इफेक्ट आएगा. एक तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे एडवर्टीजमेंट से,
और दूसरा क्योंकि ये प्रीपेड है इसलिए कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में। गेटिंग इट? तो इतना सिंपल है। तो हमें वैल्यू मिल गया कितना, 4000। तो इनर कॉलम से आप 4000 माइनस कीजिए, इनटू ब्रैकेट 4000, ठीक है। आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, 2000। अब ये जो प्रीपेड है असेट साइड में मेंशन कर देंगे, वी विल राइट ओवर हियर प्रीपेड so we will write prepaid advertisement over asset side। कितना है प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, 4000। याद रखना आपको इनर कॉलम का अमाउंट लिखना है। विच अमाउंट, यहाँ पर इनर कॉलम का आएगा 4000, ठीक है। सो वी हैव डन विथ ट्रायल बैलेंस, नाउ वी विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट वन बाय वन। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। सो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक हमने कहाँ मार्क किया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने 60,000 मार्क कर लिया, लोअर विच एवर इज लोअर, और बैलेंस शीट में असेट साइड हमने यहाँ पर 60,000 मार्क कर लिया, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, जिसमें वेजेस है 4000 और सैलरी है 2400। तो वेजेस में आइए लिखते हैं 4000, व्हाट वी विल राइट, एड आउटस्टैंडिंग, राइट। तो आउटर कॉलम में जाएगा 32,000 एंड सिमिलरली वेजेस के बाद सैलरी, सैलरी है 2400, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 46,400, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। सो लायबिलिटी साइड में वी विल राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अंडरलाइन कर देंगे और वहां लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस 4000, सैलरी 2400, टोटल 6400, ठीक है। डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, मोटर वैन 10% एंड फर्नीचर 5%। तो असेट साइड में देखिए मोटर वैन हम ले लेंगे 10% और फर्नीचर पे हमें लेना है 5%। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 40,000 का 10% कितना होता है, 4000, और 20,000 का 5% कितना होता है, 1000, ठीक है ना। तो आउटर कॉलम में क्या होगा, यहाँ पर 36,000 माइनस करना है, दैट्स वाई, और यहाँ पर क्या होगा 19,000, ओके। अब ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है इनको कहां पर सेकेंड इफेक्ट देना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो हियर यू विल राइट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर देंगे, एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट मोटर वैन एंड देन फर्नीचर। मोटर वैन पे कितना डेप्रिसिएशन आया, 4000, एंड ऑन फर्नीचर 1000, टोटल 5000। तो ये पूरा एडजस्टमेंट का पार्ट है, हेंस आई एम राइटिंग इट इन अ डिफरेंट इंक, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट ऑफ 2000 फॉर बेड डेट्स एंड आरडीडी 5%, क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो हमारे पास डेटर है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ से 2000 रुपीज
लेस करेंगे 2,000 रुपीज लेस करेंगे, फाइनल फिगर यहाँ पर आ जाएगा 42,000 का। और न्यू आरडीडी जो है वो हमें क्रिएट करना है एट द रेट 5%। तो 42,000 पे कैलकुलेट कीजिए 5%, हाउ मच यू विल गेट? 2,100। यस, करेक्ट आंसर 2,100। लेस करना है, आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 39,900। अब इसी बेड डेट्स को और न्यू आरडीडी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2,000 एंड न्यू आरडीडी आया था 2,100, इनका टोटल आता है 6,500 और इसमें से ओल्ड आरडीडी माइनस हो जाएगा और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3,300। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ डेटर्स पार्ट। डेटर के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 की तरफ, दैट इज प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल है 1,40,000 का, तो उस पे आप इंटरेस्ट जो भी लेंगे वो आप ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एट द रेट 10%। तो कितना आएगा? 14,000, राइट है। तो ये फिगर आपको मिलता है 1,15,300 और इंटरेस्ट ऐड कर देने पर आपको फिगर मिलेगा 1,29,300। ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है इसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आप यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 14,000। 10% आपने वहां पर ले लिया। तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब एक एक करके हम कास्टिंग करते हैं। आप देखिए ऑलरेडी मैंने टोटल ले रखा है यहाँ पर। विच साइड इज मोर? क्रेडिट साइड इज मोर। ठीक है, तो क्रेडिट साइड है 5,18,000 और डेबिट साइड है 2,37,000। तो 5,18,000 हम बोथ द साइड लिखेंगे और फिर जो डेबिट साइड का टोटल है उसको हमको उसमें से माइनस करना है 2,37,000 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5,18,000 और डेबिट साइड का टोटल इसमें से आप माइनस कीजिए। आंसर आता है 2,81,000। 2,81,000। ठीक है, सो हमने देखा यहाँ पर विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, और उसमें से हमने ये डेबिट साइड का पूरा पार्ट जो है उसे लेस किया और हमें यहाँ पर मिला 2,81,000। what we will write over here? To gross profit carried down। ठीक है, अब ये 2,81,000 क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो आई विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज
2,81,000। ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल देखिए यहाँ पर, विच साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर, 2,86,700, और डेबिट साइड का टोटल सिर्फ आ रहा है 83,900 का। ठीक है, तो 2,86,700 हम दोनों साइड में लिखेंगे, और माइनस कर देंगे उसमें से 83,900 एंड वी विल गेट द आंसर 2,02,800. We will write 2 net profit carried down. Net profit carried down. Okay. अब ये 2,02,800 जो है उसे हमें यहाँ पर ऐड करना है. So I will write 2,02,800 और ऐड करने पे हमें आंसर मिलता है 3,32,100. So now as you can see कि हमारा जो टोटल लाइबिलिटी साइड है वो आ रहा है 4,44,900, और असेट साइड का भी जो टोटल है वो भी सेम आ रहा है 4,44,900. That means our answer is correct. So after completing this particular question, we are done over here. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ क्वेश्चन नंबर 4. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन.